everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So today I am going to discuss about some interview question on fluid static. This is the 6th episode of interview question series. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it, otherwise you may miss out upcoming videos. So let's start, but one more disclaimer is that before this, that I have mentioned the PDF link of the question with the solution in the description box, so don't forget to check it out and save it for the future purpose. So let's start. So in the previous previous episode means in the 4th episode, I have already discussed it about the two questions of fluid static, is that what is static and dynamic pressure, and about the torque, the unit of the pressure. So fluid and so static pressure is the exerted by the fluid at the rest condition, okay, and dynamic pressure is the exerted by the fluid in the motion. So this is the difference between the static and dynamic pressure. Next question is about the torque. Then what is torque? So basically it is a unit of pressure in mmHg and is often called as torque and particularly used in the vacuum application. So basically 760 mmHg is equal to 760 torque. So let's start now. From the today's question is about the pressure measuring equipment. So what is barometer? The first question is what is barometer and how it works. Okay, so basically a barometer is used to measure the pressure of air. Barometer is used to measure the pressure of air due to the weight of column of air above it. As the earth atmosphere gets thinner with increasing height, it follows that the higher altitude go above sea level, the weight of air well decreases. In other words, we can say that the pressure decreases. So barometer basically contain sorry for this previous, I don't know how to rub it. There is no option. Eraser, yes. Yeah. 1 second, student. So let's start. I'm using a pen so that you easily understand. So in the barometer, basically this is the figure of mercury barometer. As you can see that the mercury barometer consists of long glass tube. It contains long glass tube closed at one end. This is closed at one end and filled with the liquid, usually mercury. ये basically mercury है, ठीक है, and it is inverted up and down in a open container having the same liquid. जो कंटेनर में और जो ट्यूब में है, दोनों में सेम लिक्विड है जो कि है मरकरी, और उसको इन्वर्टेड, जो टेस्ट ट्यूब है हमारा, उसको हमने इन्वर्टेड पोजीशन में रख रखा है. मीन्स क्लोज एंड अप साइड हो गया और ओपन एंड डाउन साइड हो गया, ठीक है. फिर टेकिंग केयर ऑफ द नो एयर इज एनट्रैप्ड इन द ट्यूब. हम ये बहुत एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो ट्यूब में है वो बिल्कुल भी एयर ट्रैप्ड नहीं हुई है. ओके, द प्रेशर ऑफ द एयर एक्टिंग ऑन द लिक्विड. जो प्रेशर हमारे लिक्विड पे एक्ट कर रहा है, द प्रेशर ऑफ एयर एक्टिंग ऑन द लिक्विड इन द कंटेनर फोर्स द लिक्विड अप द ट्यूब.
जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, जो लिक्विड के ऊपर जो कंटेनर है उस पे, उसकी लिक्विड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पड़ रहा है वो फोर्स कर रही है लिक्विड को ट्यूब में अपसाइड जाने के लिए। upside the height of the liquid column in the tube above the liquid surface, जो ये लिक्विड सरफेस के ऊपर जो हाइट है ट्यूब की, जो लिक्विड ट्यूब में कलेक्ट हो रहा है वो इंडिकेट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द प्लेस। ओके, द स्पेस अबव द लिक्विड कॉलम, जो ये स्पेस जो है हमारे पास जो बढ़ रहा है लिक्विड कॉलम में, यूज एज अ बैरोमेट्रिक कॉलम इज़ नॉट एब्सोल्यूट वैक्यूम। जो ये हमारा स्पेस है इसको हम एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो है क्योंकि ये इसमें वेपर ऑफ लिक्विड जो हम लोग बैरोमेट्रिक फ्लूइड्स है उसके वेपर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो द स्पेस अबव द लिक्विड कॉलम is not a absolute vacuum as it contain vapor of liquid used as a barometric fluid exerted its vapor pressure which is the function of temperature। ठीक है, तो ये फिगर का डिस्क्रिप्शन था। तो यहाँ से हमें प्रेशर पता चल जाता है एयर का। अगर हम वाटर इफ़ वाटर इज़ यूज एज अ बैरोमेट्रिक फ्लूइड, अगर हम मरकरी के बदले हम वाटर को यूज़ करें एज अ बैरोमेट्रिक फ्लूइड तो हमें कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सी लेवल के ऊपर, वो होगा 10.33। ठीक है, 10.33 मीटर, 10.33 मीटर हम अगर वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अबाउट हो गया हमारे पास किसके बारे में, बैरोमेट्रिक फ्लूइड के बारे में। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर्स। ये मैनोमीटर्स, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर के लिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स की बात कर लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के मैनोमीटर्स कौन कौन से इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास हो जाता है यूट्यूब inclined and two liquid type of मैनोमीटर्स आर कॉमन यूज़। ठीक है, ये हमारे पास फिगर यहाँ पे इंक्लूड है, मैंने आपको दिखा दिया। यूट्यूब मैनोमीटर है, ये यूट्यूब मैनोमीटर है। इसका जो प्रिंसिपल और वर्किंग होगा वो आपको बेसिक्स में पता चुका होगा। मैं फॉर्मूले में आपको दिखा दे रही हूँ, बाय डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। अगर क्वेश्चन आते हैं कि नेम करना है तो आप बोलोगे यूट्यूब इंक्लाइन एंड क्लोज यूट्यूब मैनोमीटर्स। तो ये क्लोज यूट्यूब मैनोमीटर है, ये इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर है, और ये यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम सम फ्लूइड्स एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। नेम सम फ्लूइड यूज एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। कौन कौन से ऐसे फ्लूइड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड के अकॉर्डिंग। तो लो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि लो फ्रीजिंग पॉइंट्स, अगर फ्लूइड है, लो फ्रीजिंग पॉइंट फ्लूइड है, तो उस केस में लो फ्रीजिंग पॉइंट फ्लूइड यूज्ड होता है कोल्ड वेदर में, यानी क्लाइमेट जो कोल्ड वेदर क्लाइमेट और आउटडोर यूज़ के लिए हम कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, लो फ्रीजिंग पॉइंट फ्लूइड को। ठीक है, अगर हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं हाई टेम्परेचर फ्लूइड्स, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट। अगर हाई टेम्परेचर फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट। ओके, फिर हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड कब यूज़ करते हैं, यूज फॉर इंक्रीजिंग मेजरमेंट रेंज ऑफ glass tube मैनोमीटर। mercury is used for large pressure measurement, large delta P difference measurement के लिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस है तो हम मरकरी यूज़ करते हैं।
एंड ऑयल यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप के 3-4 मैनोमेट्रिक लिक्विड हो गए। जैसे कि लो फ्रीजिंग पॉइंट, हम कोल्ड वेदर में यूज़ करते हैं पॉइंट वाले फ्लूइड को, लो फ्रीजिंग पॉइंट फ्लूइड को हम यूज़ करते हैं कोल्ड वेदर में या आउटसाइड में। हाई टेम्परेचर फ्लूइड को हम हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड को हम यूज़ करते हैं टू मेज़र इंक्रीजेज द मेजरमेंट ऑफ द रेंज ऑफ ग्लास ट्यूब मैनोमीटर, वो बेसिकली करता है। और मरकरी जो जिसमें मैक्सिमम हाई प्रेशर डिफरेंस होता है और कम प्रेशर डिफरेंस के लिए, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसड्यूसर। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है और बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ट्रांसड्यूसर। तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर is a device or electrical, electronic or electromechanical that convert one type of energy to the another for various purpose including measurement or information ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रहा है वन टाइप ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर द वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग मेजरमेंट एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि व्हाट इज़ मैकलॉन-लॉर्ड गेज। ये हमारे पास क्या होता है, मैकलॉन गेज के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये भी मैकलॉन गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र वेरी लो प्रेशर। ये बहुत ही लो प्रेशर मेज़र करने के लिए होता है, एज लो एज 10⁻⁻7 torr। इट आइसोलेट अ सैम्पल ऑफ अ गैस एंड कंप्रेस इट इन मरकरी in a modified mercury manometer until the pressure is few mmHg। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन थे जिसमें बैरोमीटर के बारे में आपको बता दिया मैंने कि बैरोमीटर कैसे वर्क करता है। दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर्स और टाइप ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया और मैकलॉन गेजेस हो गया। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास वो हो गए। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर करिए। कल मैं फिर से नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड अपॉन मे बी ऑन मास ट्रांसफ़र और फ्लूइड के ऊपर ही मैं लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।